So you see this equation can be written as what? अगर मैं 144 नीचे ले आऊं तो 9y² over 144 plus 16z² over 144 is equal to 1. तो अगर आप 4 से इसको डिवाइड करो तो 36 आ जाएगा. This is 16, this is 9, right? So अगर अब आप देखो, this is x² upon a² plus y² upon b² plus z² upon c² is equal to 1. So a² is 36, b² is 16, c² is 9. So since all these are positive, right? So therefore this equation is an equation of ellipsoid. राइट. सो वही सब चीजें जो हमने पहले करी है. ट्रेसिंग का मतलब वही है जो हमने किया है. सो फर्स्ट थिंग इज ओरिजिन. सो वी नो ओरिजिन डज नॉट पास थ्रू दिस. देन सिमेट्री. सिंस ऑल द इक्वेशंस आर इन इवन पावर इन x y z, सो दे आर सिमेट्रिक अबाउट zx प्लेन, xy प्लेन एंड xz प्लेन. देन एक्सिस इंटरसेक्शन. सो हमने क्या किया, y को 0 पुट कर दिया, z को 0 पुट कर दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, +-6. So x axis को वो इंटरसेक्ट करता है 600 and -600. Similarly y axis को वो इंटरसेक्ट करेगा इन पॉइंट पे, z axis को वो इंटरसेक्ट करेगा इन पॉइंट्स पे. Then traces on the coordinate plane. तो हमने पहले दो को 0 पुट किया था, अब एक को 0 पुट करेंगे. तो what we get, y² over 16 plus z² over 9 is equal to 1. So this is an ellipse with major axis as, so a here is 4 and b is 3 for this ellipse. So major axis is 2a and minor axis is 2b. So वही सारी चीजें जो हमने पहले करी हैं, exactly same. Similarly, generated by variable curve. So हमने क्या किया, z को k ले लिया. So this is this. So obviously this will be a valid sphere. अगर ये जो नंबर है 1 minus k² by 9 should be positive. तो यहाँ क्या से क्या आ गया, 1 should be greater than k² by 9. So 9 should be less than k². So k should lie between -3 to 3. Similarly, so k is nothing but z. So z lies between -3 to 3. Similarly, हम क्या करेंगे, y x को k ले लेंगे, तो x will lie between -6 to 6 and y will lie between -4 to 4. So what we can do roughly, this is my ellipse. So rough sketch we have done, right? And now his next question is find the area. What he want to ask is, also find the area of the plane curve in which y is equal to 2 cuts it. तो जब हम y is equal to 2 पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y is equal to 2 पुट कर दिया हमने, तो we get this ellipse. So now यहाँ पे a कितना है, a is √27 and b कितना है, √27 by 2. And we know what is the area of ellipse. Area of ellipse is pi AB. So pi AB. So this is the area of the surface which is cut by y is equal to 2, right? So now if you see, the next question is on the surface of revolution. So write down the equation of the surface of revolution obtained by rotating the curve. Now this is the first question. So y² is equal to z. X is equal to 0. So if you see, given curve is what? Given curve is f of, in terms of yz, y² is equal to z, या y² minus z is equal to 0, right? तो अगर आप देखो, अब आपको क्या निकालना है, you have to find its surface of rotation about z axis. तो मैंने आपको बताया था about z axis का मतलब क्या हुआ, z को नहीं छेड़ना, you will change y to √ y² plus x². जो y और z हैं, जिसके अबाउट रोटेट करना है उसको नहीं छोड़ना, दूसरे को चेंज करना है, और कौन सा वेरिएबल लेके आना है, वो वेरिएबल लेके आना है जो इक्वेशन में नहीं है. दैट्स इट. सो व्हाट विल हैपन, सो यू विल चेंज, सो यानी कि y² को वी विल चेंज बाय y² plus x². सो द गिवन इक्वेशन इज y² is equal to z. तो y² की जगह हमने पुट कर दिया y² plus x². This is equal to z. So this is the surface of revolution. So obviously आपने डायरेक्टली नहीं लिखना है, वो लिखना हमने वैसे ही है जैसे हम पहले लिखते थे, जैसे हम आर्टिकल्स में लिखते थे, exactly same.
So the equation, this is the given surface, y square is equal to z, x is equal to 0. So this is in the yz plane, right? So let p yz be any point in the yz plane. So as the curve revolves around z-axis, the point pyz becomes pxyz, and the perpendicular distance of yz from the axis of revolution, axis of revolution means z-axis, which is y, becomes the perpendicular distance of the point pxyz from the z-axis. So ये कितना हो जाएगा? Under root of x square plus y square. So we will change y to under root of x square plus y square. So you see, this is the equation of revolution. So y square is equal to z. Y square की जगह हमने क्या put कर दिया? X square plus y square. Beta, is it fine? Girls, clear है सबको? Yes, ma'am. Right. So all the Yes, questions totally same. Right. So there are just steps. Let us do part 3. Part 3 GNDU में आया हुआ है. Let us do part 3. So part 3 में हमारे पास क्या है? Y square is equal to 4ax. Z is equal to 0. So y square is equal to 4ax. Z is equal to 0. So the given surface is in the xy plane, and we have to rotate it about the x-axis. तो ultimately आपने क्या करना है? आपको y square को change कर देना है किसमें? y square plus z square. Because आपने x-axis के around rotate करना है, तो x को हम change नहीं करेंगे. We will change y square to y square plus z square. So you see, the equation is y square is equal to 4ax, z is equal to 0. This is in xy plane. Now let pxy be any point in the xy plane. So as this curve, so अगर आपको parabola ये सब नहीं पता, you can simply write surface. So as the surface or the given curve revolves about the x-axis, what will happen? The point pxy in the xy plane becomes pxyz, and the perpendicular distance of pxy from the axis of revolution कौन सी है? x-axis, that is y, becomes under root of y square plus z square. तो हमने क्या किया? We have changed y to under root of y square plus z square. So y की जगह ये put करते हैं, y square की जगह क्या आ जाएगा? Y square plus z square is equal to 4ax. So this is the surface of revolution. That's it. So this is all what you have to do in all the questions of surface of revolution, right? So if you see example number 3, find the equation of the surface generated by the revolution of the circle about z is equal to 0. So if you see, this is an equation in terms of f of xy. आपको revolution कहाँ करनी है? About x-axis. So about x-axis, so you will not touch x, you will change y to under root of y square plus z square. So that is y square को आप change कर दोगे y square plus z square. बेटा, is it clear? Surface of revolution clear है सबको? Yes, ma'am. You see, so y square की जगह हमने ये थी equation. ये थी इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. सो y स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दिया? y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. इधर y की जगह क्या पुट कर दिया? अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. सो दैट्स इट. So this is the required equation. You want to simplify it, you can make it square free. Now the another third type of question is totally same. So identify the surface. So अब आपको क्या करना है? कंप्लीट स्क्वायर करके आपको जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन लिखी थी, आपको देखना है ये कौन सी सरफेस है. तो इफ यू सी इन दिस क्वेश्चन, यू हैव so say the question is 4x square plus 9y square plus z square minus 6x plus 6y minus 4z plus 10 is equal to 0. Very first step should be there should be no mixed term. अगर आप देखो इस इक्वेशन में या तो x स्क्वायर की टर्म है, y स्क्वायर z स्क्वायर, या x या y या z. There should not be mixed term. अगर mixed term होगी हम उसको एलिमिनेट करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे एलिमिनेट करते हैं. Right? So moment you have no mixed term, you have this equation, then do the complete square. So पहले x वाली सारी टर्म इकट्ठी कर लो. मैंने 4 कॉमन ले लिया. कोफिशिएंट ट्राई करो 1 बन जाए बिकॉज इजी हो जाता है. तो 4 कॉमन ले लिया. सो माइनस 6/4 आ जाएगा x, और फिर 9 कॉमन ले लिया. सो y स्क्वायर प्लस 6/9y, एंड लास्टली z स्क्वायर माइनस 4z plus 10 is equal to 0.
So if you see this is 4x square. So 2 हमें चाहिए होता है, तो यहाँ क्या बच गया 3/4. So if you see 2ab, so a तो x हो गया, 2 हमारे पास आ गया, so b मुझे चाहिए. So हमें पता है हमें क्या चाहिए, we need a b square. 3/4. स्क्वायर, हाँ 9/16 प्लस करेंगे, 9/16 माइनस करेंगे. बेटा इज इट फाइन? बेटा क्लियर है? बच्चे क्लियर है सबको? यस मैम. फिर से 9y² प्लस अगेन 2 कॉमन ले लिया, सो 3/9 y. तो अभी फिर से b², सो 9, ये 1/3 बन गया बेसिकली 1/3. सो इसको हम कर सकते हैं 1/9 ऐड किया, 1/9 सब्ट्रैक्ट किया. एंड लास्ट ब्रैकेट में इफ यू सी दिस इज प्लस z² अगेन -2 2z, तो +4 किया -4, और बाहर तुम्हारे पास क्या पड़ा है +10 पड़ा है. तो इफ यू सी व्हाट इज फर्स्ट ब्रैकेट इज x - 3/4 का होल स्क्वायर. सो यू सी बाहर 4 है, सो 4 × x - 3/4 का होल स्क्वायर. फिर क्या बच गया 9 × y - 1/3 का होल स्क्वायर, एंड लास्ट इज z - 2 का होल स्क्वायर. एंड अगर आपने कांस्टेंट टर्म निकालनी है तो प्लीज ध्यान से निकालनी है. अगर देखो फर्स्ट ब्रैकेट से कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है, जो बाहर माइनस साइन के साथ 9, बाहर 4 था नीचे 16 है, तो सिर्फ 4 बच जाएगा. नेक्स्ट ब्रैकेट में बाहर भी 9 है अंदर भी 9 है, तो -1, फिर -4 और एक +10 पड़ा. So what we did, let us take the LCM as 4. So -9 - 4 -16 +40. So this is how much 29. So 40 - 29. So this is 11/4. Beta, is it fine? Yes ma'am. That's it. So what you will do now? So let us shift the origin to the point 3/4, 1/3 and 2. हमें पता है जब हम शिफ्ट करते हैं पॉइंट H के, तो x कितना हो जाता है x + h, y कितना हो जाता है y + k. तो सेम कंसेप्ट अगर हम लगाएं, मींस बेसिकली हमने यहाँ पे किया है x - 3 को हमने कैपिटल X मान लिया, y - 1/3 को हमने कैपिटल Y मान लिया, और z - 2 को हमने कैपिटल Z मान लिया. सो यू सी वी गेट दिस इक्वेशन. और अगर आप इसको लिखोगे, सो दिस इज 4x² + 9y² + z², कांस्टेंट को उधर ले जाओ, -11/4. सो अगर आप देखो ये बोल रहा है कि नंबर्स के स्क्वायर्स का सम नेगेटिव आना चाहिए, and you see this is never possible because square is always positive. So this set will be an empty set. Beta, is it fine? Yes ma'am. Yes ma'am. Right, so if you see the next question, all the questions are same now. Identify the surface. So again there is no mixed term. हमने terms को club कर लिया, complete square कर दिया, right? So you see finally you get this equation. हमेशा अंदर इफ यू सी जब हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करते थे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे हम ओरिजिन कहाँ शिफ्ट करेंगे, -2 पे, -3/2 और 1/3. इसका मतलब कुछ नहीं है, हमने स्मॉल x + 2 को नाम दे दिया कैपिटल X, y + 3/2 को नाम दे दिया कैपिटल Y, and z - 1/3 को नाम दे दिया कैपिटल Z. So you see this whole is equal to 0. Now the sum of the squares of number is 0. So obviously only possible value is what? Capital X is 0, capital Y is 0, capital Z is 0. So what this will represent? This will represent just one point. And what is that point? आपने already equation आपकी small में थी. So x + 2 is equal to 0, y + 3/2 is equal to 0, z - 1/3 is equal to 0. Because this is capital X, this is capital Y, this is capital Z. So यहाँ से small x की वैल्यू आ गई -2, स्मॉल y की वैल्यू आ गई -3/2 एंड स्मॉल z की वैल्यू आ गई 1/3. कई बार ये भी हो जाता है कि पॉइंट निकालो. बेटा, इज इट फाइन? Yes ma'am. Yes ma'am. Now if you see next question again, no mixed term is there. Combine किया, ये वाली इक्वेशन बन गई, कंप्लीट स्क्वायर करके शिफ्ट कर दिया. So x² + y² - 4z² is equal to 22. तो अब अगर आप देखो इसमें एक कोएफिशिएंट नेगेटिव है,
तो कौन सी, which equation it will be, क्या बन जाएगा ये? Hyperbola of one sheet. One sheet hyperbola. So if you see next, all the questions are same. There is no mixed term. So you can randomly pick up fifth question, pick कर लेना because पंजाबी यूनिवर्सिटी में आया हुआ है. So you can just try this question. If you're able to do, means you're fine. Almost all this is all same. अगर सारे पॉजिटिव आए, so if you see in this, if you see just let us see one by one. अगर आप देखो फर्स्ट पार्ट को जब आपने सॉल्व किया, जब आपने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया तो बेटा ये आ गया, ऐसा आ गया. So you see this is a square minus b square. तो अगर आप a square minus b square करोगे तो क्या आ जाएगा? a minus b, a plus b. So if you see, this is what? This is two planes and they are multiplying. So this is nothing but the pair of intersecting planes. So as आपको कुछ भी मिल सकता है. So you see, you get pair of two intersecting planes. Then if you have seen the second question, तो you see यहाँ से ये आ गया. जब आप इसको shift करोगे तो ये आ गया. And we know all the coefficients are positive. So this is an ellipsoid. Beta, is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now if you see example number 8. Now this equation has a mixed term. This equation has a mixed term now. So if you remember, यही चीज हमारे पास थी जब हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोनिक्स किया था इन कोऑर्डिनेट. तो आपको पता है जब भी उसमें भी हम पहले यही करते थे, हम पहले मिक्स टर्म रिमूव करते थे. अब यहाँ पे मिक्स टर्म को कैसे रिमूव करना है? यू विल यूज द सेम फॉर्मूला विच वी हैड. अगर हमारे पास सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, हमें पता है tan टू थीटा कितना होता है बेटा? Twice of h over Twice of h over a minus b. है ना? And what is h? H is Half of coefficient of xy. xy. So h is the half of the coefficient of xy. बेटा क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अगर बाई चांस इसी, अब जरूरी तो नहीं है xy वाली टर्म हो सकता है इस इक्वेशन में आपके पास yz वाली टर्म होती, तो आप क्या यूज करोगे? आपको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर, आई मीन प्लस 2f yz प्लस 2gzx प्लस 2hxy. f होता है कोफिशिएंट ऑफ yz हाफ, g होता है हाफ द कोफिशिएंट ऑफ zx और h होता है हाफ द कोफिशिएंट ऑफ xy. इसमें xy वाली फॉर्म थी तो आपने क्या यूज कर लिया? tan टू थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ h ओवर a माइनस b. अगर yz वाली टर्म होती तो आप क्या यूज करोगे? tan टू थीटा विल बी 2f ऑफ f ओवर a माइनस b. बेटा क्लियर है? Yes, ma'am. फिर f इज व्हाट? yz का कोएफिशिएंट क्या कह रहे हो बेटा? b माइनस c नहीं होगा? नहीं बेटा, जो आपका जो यहाँ, हाँ फिर उसमें b माइनस सी हो जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नीचे b माइनस सी हो जाएगा. थैंक यू बेटा. बिकॉज yz का इतना याद रखना है, अगर xy का कोफिशिएंट है तो नीचे a और b का आएगा, xy का आएगा. अगर yz का है तो नीचे yz आएगा. राइट? यस. सो दिस विल बी b माइनस सी. ऐसे ही अगर आपके पास कौन सी टर्म है? zx की टर्म है तो क्या आ जाएगा बेटा? tan टू थीटा विल बी 2g over c minus e. माइनस c. बेटा इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? द प्रोसेस Yes, विल ma'am. रिमेन द सेम. क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता कि तीनों टर्म्स होंगी, एक ही टर्म होती है. वैसे अब तो मैं बता रही हूँ, अगर तीनों टर्म हो तो हम पहले एक टर्म एलिमिनेट करते हैं, फिर दूसरी टर्म एलिमिनेट करते हैं, फिर तीसरी टर्म एलिमिनेट करते हैं, वन बाय वन. राइट? So here if you see in the given question there is a term of xy, so tan to theta is 2h over a minus b. So h की वैल्यू पुट कर दी, a minus a और b की वैल्यू पुट कर दी. a is the coefficient of x square, b is the coefficient of y square. So you get this. तो यहाँ से हमें tan theta की वैल्यू चाहिए, so 2 tan theta over 1 minus tan square theta is 4/3. Ultimately you get two values of tan theta.
सो जनरली हम पॉजिटिव वाली वैल्यू रख लेते हैं. अब हमें पता है tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो यानी कि परपेंडिकुलर इज 1, बेस इज 2. तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सो अंडर रूट 5. सो यहाँ से cos थीटा कितना आ गया, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड sin थीटा कितना आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब हमें पता है जब हम, अगर आपको याद हो, एक तरह से हम रोटेशन ऑफ एक्सिस कर रहे हैं, थीटा ले आए. तो अगर आपको याद हो रोटेशन ऑफ एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता था, स्मॉल x कितना हो जाता था, x cos थीटा माइनस y sin थीटा. सो नाउ यू हैव दीज वैल्यूज एंड y, स्मॉल y कितना हो जाएगा, x cos sin थीटा प्लस y cos थीटा. बेटा इज इट क्लियर? स्मॉल x की जगह हम ये पुट कर देंगे, रिलेशन इन कैपिटल X एंड Y. स्मॉल y की जगह वी विल पुट दिस, right, and we get this equation, so ultimately we will simplify this equation. तो जब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे आपकी मिक्स टर्म खत्म हो जाएगी. आपकी मिक्स टर्म खत्म हो जाएगी. अब मेरी बात ध्यान से देखो, you will get, suppose you get this equation, ultimately you get this equation. बेटा अगर आप देखो इसमें एक टर्म तो स्क्वायर वाली आ रही है, y का तो स्क्वायर आ रहा है, तो मींस आप y का कंप्लीट स्क्वायर कर दोगे, आपको कंप्लीट स्क्वायर वाली टर्म मिल जाएगी. बट अगर आप देखो x की सिर्फ लीनियर टर्म आ रही है, x का स्क्वायर टर्म नहीं आ रही, मींस x वाली टर्म ऐसी रहेगी. आपको याद है कौन सी इक्वेशन में x वाली टर्म ऐसी रहती थी, एक टर्म की पावर 2 होती थी और एक टर्म की पावर सिंगल. पैराबोला. बेटा क्लियर है? सो यू सी दिस इज पैराबोलिक सिलेंडर. बेटा इज इट क्लियर है? इज इट फाइन? तो हमें देख के ही, अगर तो सारी इक्वेशंस की स्क्वायर टर्म्स है, मींस आपको कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कोफिशिएंट सारे पॉजिटिव हैं या 2 पॉजिटिव है या 1 पॉजिटिव है. अगर आपको दिख रहा है कि एक टर्म का स्क्वायर तो बन सकता है पर दूसरी टर्म सिंगल है, तो वहां से हमें पता लग जाएगा दिस इक्वेशन इज अ पैराबोलिक इक्वेशन. बेटा क्लियर है? इज इट क्लियर बच्चे, ऑल ऑफ यू? यस मैम. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बेटा. मैम जो हमने फॉर्मूला किया tan थीटा वाला, मैम आपने बोला था ना कि अगर मेरे पास zx वाली टर्म हो तो हमारे पास नीचे मैम a माइनस c करेंगे कि c माइनस a करेंगे? बेटा ये आप वो आप करोगे नीचे जो नहीं, पहले y, आप y आपकी टर्म्स होती है xy yz zx, ऐसे देखोगे आप xy yz zx. तो यहाँ पे हम करते हैं a माइनस b, यहाँ पे हम करेंगे b माइनस c और यहाँ पे हम करेंगे c माइनस. ओके मैम. So if you see question number 9th, if you see example number 9th, यहाँ पे yz है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, tan 2 थीटा कितना हो गया, so 2f over b minus c. तो अगर आप देखो डिनोमिनेटर 0 बन गया, so this is infinity. तो हमें पता है infinity tan कब होता है, जब 90 होता है. So 2 थीटा is 90 डिग्री, तो यहाँ से थीटा आ गया 45 डिग्री. So we get, अब यहाँ पे बस आपने ये ध्यान रखना है बेटा, अब since we had, अब आपने y और z को चेंज किया है, तो y की जगह वही सेम x cos थीटा माइनस y sin थीटा. अब y की वहां पे x की जगह, so y की x की जगह y आ गया है और y की जगह z आ गया है. तो ये थोड़ा ध्यान से करना है बेटा. इज इट फाइन? यस राइट. यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है थोड़ी सी, लिख लो. सो आपको रिलेशन वही याद होता है, x cos थीटा माइनस y sin थीटा. आई मीन जो ये रिलेशन ये गलत लिख रहा है, x cos थीटा प्लस y cos थीटा, यहाँ sin थीटा आएगा, y sin थीटा प्लस x cos थीटा, हमें x cos sin थीटा प्लस y cos थीटा. तो प्लीज आप रफ में, चाहे पहले व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट कि रफ में ये रिलेशन लिख लो, क्योंकि हमें यही रिलेशन याद होता है. और फिर क्या करो, x की जगह y कर दो और y की जगह z कर दो, जहां जहां रिलेशन आ रहा है. बेटा क्लियर है सबको? यस मैम. So moment we are done with this, we have got this relation, just put this relation in your equations. So you see, you will get this type of equation.
सो सिंप्लीफिकेशन यू कैन डू. सो यहाँ पे अब देखो तीनों टर्म्स का स्क्वायर है मेरे पास, एक्स स्क्वायर भी है, वाई स्क्वायर भी है, जेड स्क्वायर भी है. तो मुझे अब कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा. सो ये कंप्लीट स्क्वायर किया. अगर आप रीजन को शिफ्ट करते हो, सो x माइनस 1 की जगह सम x डैश, y प्लस 1 बाय अंडर रूट 2 की जगह सम y डैश, एंड z प्लस 1 बाय अंडर रूट 2 की जगह सम z डैश. So if you see one of the coefficient is negative, so this will represent hyperboloid of one sheet. Beta, is it clear? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am.